पेंटिंग्स देखने का बहुत शौक है मुझे बचपन से। अम्मा से काफ़ी कुछ सीखा है। हमारे घर में बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं और एक्चुअली भरत जी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था कि वो गुरु हैं और योगा सिखाते हैं और बहुत जानकारी है उनकी और स्पिरिचुअल भी बहुत रहे हैं। उनके पेंटिंग के बारे में कम जानती थी मैं, लेकिन मुझे मालूम है कि एक नया जर्नी है उनका। एक्सप्रेसिव बहुत है, आर्टिस्टिक बहुत है और जो बैरियर्स होते हैं वो बैरियर्स में बिलीव नहीं करते और सारे बैरियर्स को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अब जहाँ की आर्ट गैलरी में उनकी एग्जीबिशन, बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन चली है। आई वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट। आई वांट टू थैंक हिम फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑन फॉर द नेक्स्ट 4 days आई थिंक। 5 days here and here we are. It's beautiful. There are more than 60 paintings और अलग अलग तरह के। ये हम मोनोक्रोम सेक्शन में है, ब्लैक एंड वाइट सेक्शन, एक्रिलिक के साथ पेंट करते हैं। Then he has a beautiful section on the Aghori Babus which are stunning, and then some very vibrant colors as well, all abstract. And I've just learnt about his process also. वो मतलब बस पेंट उठा के फेंक देते हैं कैनवस पे। कुछ पेंटिंग्स 2-3 मिनट में बन जाती हैं, कुछ में टाइम लगते हैं. So he's very inspirational. So what would you want to say about the trolling that recently happened during your baby shower, the photo that you shared on Instagram? You know, I really don't want to say anything क्योंकि बहुत ही ridiculous था वो. So I don't think it requires any kind of response. And it wasn't actually, you know, I think it was because it was close to Eid and I was seen in a sari and that was the problem that a few people had. But I don't think it really even dignifies a response. Would you want to say anything about the current A.R. Rahman situation that's going on when, you know, fans walked away from his concert in UK because he started off singing Tamil and Telugu songs and not Hindi songs? You know, I mean, every day there's a different controversy. I think what we're here for today is what we should stick to. It's a wonderful day for Dr. Thakur and we're all here to celebrate him and to celebrate painting. And as Swara said also in her speech, it's really about being free and being expressive. He himself is a spiritual person, a religious person, and he really teaches you about how free you can be, especially when you're celebrating something like your relationship with God. And I think that's something that we should remember. Would you also want to throw colors on a canvas and be an artist, abstract artist? I've always been scared of expressing myself because I felt कि आपको artist बनने के लिए school जाना पड़ता है and you really have to be schooled in this. But I've just learned that even Bharat ji has not been to any kind of he hasn't had any kind of formal art education. So I think it's possible. I think one day maybe. I've always liked the idea of having an easel and maybe playing with it. But I think I will also have a slightly abstract because I've never been able to paint within the lines. I think my paintings will also be abstract. इसके अलावा इन दिनों आप अपना ध्यान कैसे रखती हैं? हेल्थ का अगर कुछ बताना चाहें? मैं भी योगा करती हूँ. Actually, I've been doing yoga for many years, but especially पिछले 3 महीनों में मैंने बहुत योगा किया and I've got a lot of peace from that, a lot of फिटनेस फ्लेक्सिबिलिटी. तो मैं तो इनकरेज करती हूँ. सब कहते हैं कि इस टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने आप का बिल्कुल रखना चाहिए. बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बी एक्टिव. जो कुछ आप करते थे पहले आप अभी भी कर सकते हैं. और इन दिनों घर पे कैसा माहौल होता है अगर आप कुछ बताना चाहें? घर में तो माहौल में तो सब बहुत ही एक्साइटेड हैं. अभी बस वेट ही कर रहे हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. मुझे पता नहीं कि व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स. बहुत कुछ सीखने को होगा. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. I was very excited. I was looking forward to it because Bharat Thakur, जैसे हम सब जानते हैं, he is very famous and known for his holistic and yoga and everything. तो it's very interesting कि जब भी कोई एक पर्सन जो अपने फील्ड में टॉप पर है और कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड में डैबल करे, so very interesting what he comes up with. And I think the abstract art that I can see is really nice. In fact, मेरा एक घर अभी मैंने खरीदा है and I was actually looking forward to buy some of the art from here. And I think I'm going to go and tell him the ones I like because it's actually very interesting. Okay, पूजा जी पेंटिंग का कितना शौक रखती हैं आप? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि बचपन में या स्कूल में पेंटिंग ड्राइंग अगर आप कुछ बताना चाहें? बचपन में नहीं, पेंटिंग ड्राइंग नहीं. मेरे को याद है मिस इंडिया में ना सारी लड़कियों से हमको एक कैनवस दिया था और हमसे कहा था कि जो आप पेंटिंग कर सकते हो करो एंड इनके जो प्रोसीड्स आएंगे वो चैरिटी में जाएंगे. तो मुझे बाकी लोगों ने तो जो बनाया वो बनाया, बट पहले मैंने सोचा मैं वो माउंटेन्स एंड पानी और बोट वो सब बनाती हूँ. बचपन में सबसे पहले वही सीखा था. बट आई लैंडेड अप मेकिंग एन ओम विच वॉज वेरी कलरफुल एंड एब्स्ट्रैक्ट. बट दैट्स ऑल आई नो अबाउट पेंटिंग. आई डोंट नो मच अबाउट पेंटिंग. But yeah, this abstract art looks really pretty, so I think I like this kind of abstract art kind of painting. पूजा जी, इसके अलावा एक रोड सेफ्टी के ऊपर क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि आप एक एक्टर हैं, लोग आपकी बातें सुनते हैं, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? रोड सेफ्टी मतलब ये तो एक ऐसा सीरियस टॉपिक है. आई थिंक विच वी स्टार्ट इट विल नॉट गेट ओवर बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफ कोर्स वी शुड वेयर हेलमेट्स, नॉट ओनली द राइडर बट ऑल्सो द पर्सन हु इज सिटिंग बिहाइंड द पिलियन.
मैं बहुत बार देखती हूँ कि 3 से ज़्यादा लोग बाइक्स पे भी ट्रैवल करते हैं. आई थिंक वी शुड अवॉइड दैट. ऑल्सो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज एब्सोल्युटली अनसेफ. आई मीन नॉट ओनली फॉर यू बट यू पुटिंग अ लॉट ऑफ अदर फैमिलीज एंड पीपल एज रिस्क. जिनकी गलती भी नहीं होगी आप उनको भी यू नो दे विल ऑल्सो सफर फॉर द फ्रॉड. सो इट्स अ रिक्वेस्ट इफ यू ऑल कैन जस्ट बी सेफ एंड बी कॉशियस एंड कॉन्शियस एंड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. एंड रैश मत ड्राइव कीजिए, रोड रूल्स फॉलो कीजिए एंड बी सेफ. एंड इट्स बेटर टू बी लेट देन टू बी लेट. सो फॉलो दैट. थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हमेशा सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उस चीज़ के साथ थोड़ा समय बिताया जाए. सो वेरी ग्रेटफुल दैट भरत जी gave me this opportunity. I think that, as I said, that art is a very special thing because anything that doesn't require language and doesn't require words is a truly special form of expression. Bharat ji, of course, is a very well-known guru and a teacher, and now we see this other wonderful side to his personality and his persona. And I'm quite stunned, and I really am taking in all the beautiful work. And as I said, that my special favorites are his CDs on the movies. Will you also see a difference for our class when you should be getting into an artist abstract painting or something? No, I can rest assure you, is never going to happen. I don't think I have that skill at all. I can barely manage to learn my lines and do my scenes. I think I will suffice myself with that. Sir, we have to talk about the recent one incident wherein the crowd was rebel for this concert because he started singing Kapil Republic, song थोड़ा and गलती है. the fans were disappointed and they started shamming him and trolling him on social media. I mean, I think it's a very silly thing and a very silly kind of reaction. I think that art and especially music has no borders. It is not something that is bound by language. And if that basic thing you don't get about music, then you don't get anything about music. So then actually you don't deserve to be sitting in that hall. So it's just as well that it's not left because you're falling on deaf ears anyway. हाल ही में एक फिल्म सामने निकल कर आया था जहाँ पर कैदियों को, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे वो मर्डर हो, उन्हें ज़्यादा पैसे देकर खाना खिलाया जाता है. नेवी और आर्मी है वो 97 में इसमें सर्वाइवल करते हैं पूरे दिन अगर उनको दिखाएं. तो इस पर आपको क्या टेक है? कैमरा I mean, I don't think इसमें कुछ कहने की बात है यार. जो भी रूल्स हैं वो सबके लिए सेम होने चाहिए. अगर टीवी खत्म हो गया और कहीं पर भी चाहे वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो. So I think that rules must be followed and any kind of corruption in that is wrong. Obviously, इसमें क्या बोल सकते हैं. मेरा मैम लोग सेंटर कैमरा. अरे वारे बेटा आप आवाज आई आएंगे वो आपके पास. सुनाई नहीं देता. हाँ, क्या विषय में बहुत ही बढ़िया रहा. पहली बात तो ये पेंटिंग से या एक असली कहानी है. हर एक पेंटिंग में मुझे एक कहानी नज़र आती है जो अगर आप देखोगे तो आपको अलग कहानी नज़र आएगी. अगर मैं देखूँगी तो मुझे अलग कहानी नज़र आती है उसमें. मैं सोचती हूँ कि ये एक मिरेकल है. एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स एक मिरेकल होते हैं. तो मेरे लिए ये वही है क्योंकि अगर आप एक पेड़ दिखा रहे हो या 10 पेड़ दिखा रहे हो, ये आपका नज़रिया है. आप एब्स्ट्रैक्ट में क्या देखते हो, यही उसकी खासियत होती है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की. तो मेरे लिए ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है. मुझे एक मिस्ट्री सा लगता है हर एक पेंटिंग में क्योंकि हर एक पेंटिंग में एक कहानी जैसी होती है. आपकी स्टोरी अलग है, हिस्ट्री अलग है. तो आप देखोगे तो कहोगे नहीं मुझे ये ऐसा लगता है कि अरुण इसमें एक जंगल है और आपको लगेगा नहीं सिर्फ एक पेड़ है. मेरे लिए जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स है बहुत ही अमेजिंग मीडियम है और उनके जो कलर्स हैं और जो स्ट्रोक्स हैं उनका जो प्ले है उसमें और जो भरत जी की इमोशंस है उसमें, उनकी आइडियाज़ हैं और उनकी एक्सप्रेशंस है उसमें और एक बहुत ही ऑनेस्टी है पेंटिंग्स में. एक बहुत ऑनेस्ट फीलिंग सा नज़र आता है मुझे इसमें. और ख़ासतौर जो मैंने गुरी बाबा की पेंटिंग्स देखी अभी वो बहुत ही फैंटास्टिक है क्योंकि एकदम रियल लगता है. मैं वही पूछ रही थी भरत जी से कि आप ये कैसे करते. तो कह रहे थे चौक से जो हर एक दाढ़ी का एक एक बाल जो नज़र आ रहा है उसमें बहुत ही मतलब दिमाग खुल गया देखकर. इतना बढ़िया सा है. और जो उनके मीडियम्स है और जो हाथ से करते हैं मुझे लगता है कि हाथ से, क्योंकि मैं जब ब्लॉग लिखती हूँ तो मैं लिखती हूँ तो मैं हाथ से लिखती हूँ पहले फिर टाइप करती हूँ. तो मुझे लगता है कि हाथ की जो एनर्जी, अपनी जो एनर्जी आती है और बाहर जो भरत जी आप हाथ से पेंट करते हो, कलर्स फ्लैश करते हैं और कोई ब्रशेज़ नहीं यूज़ करते हैं. मुझे लगता
लगता है कि जो अंदरूनी एनर्जी होती है हर एक इंसान की, उसमें से जो एनर्जी बाहर आती है, उसका जो कयामत जो नज़रिया आपको दिखता है, जो मैजिक उसको कहते हैं, आपको दिखता है, वो आपको नज़र आ रहा है इसमें, और मुझे भी नज़र आ रहा है इसमें एक यूनिकनेस है पेंटिंग्स में। बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है ये सब देखकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि कोई एक्टर कम बैक नहीं करता है, क्योंकि वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। ये बस आपके ऊपर है कि आपको कुछ पसंद आया तो आपने कर लिया, या आपको स्क्रिप्ट्स पढ़ते हो कभी कुछ अच्छा लगता है कर लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि कम बैक होता है। मुझे लगता है मैं एक्टिंग करूँ या ना करूँ, उसमें धमाका ही है।